Okay, welcome back, student. This is our chapter number 1, and in that is your chemical reactions and equations. This is the first number topic. From it we are discussing about the part 12 class 10 CBSE बोर्ड एनसीईआरटी सिलेबस, राइट। यहाँ पे हम पहला पॉइंट देखेंगे इस लेक्चर में 1.2.1, दैट इज द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। then reactivity series of the metal, very important point, reactivity series of the metal. Then activity 1.9 we will discuss, that is the displacement reaction between the iron nail and the copper sulfate solution, and all above concept we will discuss the previous year questions with above concepts, right? So that is my first point, 1.2.1 displacement reaction, right? Now those chemical reaction definitions of the displacement reaction, those chemical reactions in which more reactive metal or non-metal displaces less reactive metals or non-metal from its aqueous salt solution is called as a displacement reaction। यहाँ पे क्या हो रहा है, more reactive metal या तो more reactive non-metal डिस्प्लेस कर रहा है लेस रिएक्टिव मेटल और लेस रिएक्टिव नॉन मेटल को from its aqueous salt solution, from its aqueous salt solution is called as a displacement reaction। यहाँ पे होता है क्या दोस्तों, A B reacted with a C, right, and it will forms the AC and B। Here C is the more reactive which displaces the B and we get AC from the AB and B is the side product। Here B is the less reactive, C is the more reactive and C is displaces B and we get AC and that is called as a displacement reaction। मतलब यहाँ पे क्या है, AB का रिएक्शन C के साथ करोगे तो हमको AC और B मिलेगा। यहाँ पे B लेस रिएक्टिव है और C मोर रिएक्टिव, सो C क्या करेगा, B की पोजीशन लेगा और B को वहां से निकाल के C वहां पे जाके बैठेगा और हमको AC प्लस B मिलेगा। ये क्यों होता है, this is happens due to the reactivity series of the metal। Now what is meant by the reactivity series of the metal? The arrangement of the metals in the vertical column। vertical column मतलब क्या है, top to bottom arrangement, top to bottom arrangement in order of their decreasing reactivity। metal को हम vertically top to bottom rearrange करेंगे, right, depending upon their reactivity series, and reactivity series is decreases from the top to bottom is called as a your reactivity series and activity of the series of the metal। मतलब reactivity of the series of the metal इसका मतलब क्या है, मेटल को हम वर्टिकली टॉप टू बॉटम इस तरीके से अरेंज करेंगे कि टॉप का क्या है मोर रिएक्टिव है, बॉटम का क्या है लेस रिएक्टिव, उस सीरीज को हम रिएक्टिविटी सीरीज बोलेंगे और एक्टिविटी सीरीज ऑफ द मेटल बोलेंगे, राइट। सो मोस्ट रिएक्टिव मेटल, right, most reactive metals which are present at the top and the least reactive metal which are present at the bottom। जो टॉप रिएक्टिव है मतलब रिएक्टिव मेटल है, ज्यादा से ज्यादा रिएक्टिव मेटल है वो टॉप प्रेजेंट रहेगा और जो लीस्ट रिएक्टिव है बॉटम में प्रेजेंट रहेगा। मतलब टॉप पे है मोर रिएक्टिव और बॉटम में है लेस रिएक्टिव, ऐसा कह सकते हैं, राइट। अब इन द रिएक्टिविटी सीरीज द मेटल प्रेजेंट इन द हायर इन द रिएक्टिविटी सीरीज इज मोर रिएक्टिव। जो मेटल रिएक्टिविटी सीरीज में अपर पोजीशन पे है इसका मतलब वो मोर रिएक्टिव है, राइट। बिकॉज व्हाई, बिकॉज द टॉप ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज मेटल लूज इलेक्ट्रॉन इजीली। जो टॉप पोजीशन पे है अपर पार्ट ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज है वो मेटल इजीली इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और इलेक्ट्रॉन लूज करके हमको एक पॉजिटिव आयन देगा और जो ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन लूज करता है वो मोर रिएक्टिव होता है। ये आप बात समझ लीजिएगा। जैसे कि मेरे पास 10 रुपए है, ये मैं हूं, राइट, ये मेरे पास 10 रुपए है, अगर मैं 1 रुपया लॉस करता हूं तो मेरे हेड पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, राइट। मतलब जो मोर रिएक्टिव है वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा इजीली और पॉजिटिव आयन आ जाएगा। केमिस्ट्री में अगर इलेक्ट्रॉन लूज करते तो पॉजिटिव चार्ज हम देते, इस बात को ध्यान में रखिएगा। पोटेशियम एलिमेंट इज द मोस्ट रिएक्टिव एंड प्लेटिनम is the least reactive। platinum, gold, these are the least reactive। so potassium is more reactive, platinum, gold, these are the less reactive, right। now more reactive metal displaces easily to the less reactive metal from its salt solution, उसको हम reactivity series of the metal बोल सकते हैं। मतलब जो मेटल मोर रिएक्टिव है लेस रिएक्टिव को इजीली डिस्प्लेस कर सकते हैं उसके साल्ट सॉल्यूशन से, ये हम यहाँ पे कह सकते हैं, राइट।
तो यहाँ पे मेरी एक रिएक्टिविटी सीरीज है, राइट। यहाँ पे मेरा पोटेशियम है, सोडियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, जिंक, आयरन, लीड, देन हाइड्रोजन, कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर, राइट, देन पैलाडियम, प्लेटिनम एंड गोल्ड, दीज आर द मेटल। जो हाइड्रोजन से ऊपर है वो मोर रिएक्टिव है, और हाइड्रोजन से नीचे वो रिएक्शन में भाग नहीं लेते, वेरी लेस रिएक्टिव मेटल्स है, राइट। और जो टॉप में प्रेजेंट है पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, वो मोर रिएक्टिव है, वो इजीली इलेक्ट्रॉन देंगे। अगर मान लो पोटेशियम ने इलेक्ट्रॉन दे दिया तो इजीली के प्लस करेगा, कैल्शियम ने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो Ca2 प्लस करेगा। सो जो टॉप पोजीशन पे है वो इलेक्ट्रॉन इजीली लॉस करेंगे और पॉजिटिव चार्ज आयंस तैयार करेंगे। हाइड्रोजन से जो ऊपर है वो हाइड्रोजन से नीचे एलिमेंट को इजीली डिस्प्लेसेस करेंगे, क्योंकि ऊपर के मोर रिएक्टिव है। क्यों मोर रिएक्टिव है? क्योंकि वो इजीली इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। जो इजीली इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं वो मोर रिएक्टिव हैं, और नीचे के इजीली इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करते, इसलिए वो मोर रिएक्टिव नहीं है, राइट। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा, राइट। तो यहाँ पे इन शॉर्ट में रिएक्टिविटी सीरीज को यहाँ पे एक बार दोहराता हूँ आपको। The arrangement of the metal in the vertical column decreasing reactivity from the top to bottom is called as a reactivity series, right? जो more reactive top पे present है, less reactive bottom में present रहेंगे। जो metal higher reactivity series में present है, more reactive है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन इजीली लॉस करता है, और जो और पॉजिटिव आयन तैयार करता है, और जो नीचे प्रेजेंट है वो लेस रिएक्टिव है, वो इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करता, इसलिए लेस रिएक्टिव है। पोटेशियम मोर रिएक्टिव, प्लेटिनम लेस रिएक्टिव, और जो मोर रिएक्टिव है लेस रिएक्टिव को इजीली डिस्प्लेस करेगा उस साल्ट सॉल्यूशन से। हाइड्रोजन से ऊपर मोर रिएक्टिव, हाइड्रोजन से नीचे रिएक्शन में भाग नहीं लेते हैं। हाइड्रोजन से ऊपर पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, Fe, Pb, वो इजीली इलेक्ट्रॉन लूज करते, इसलिए मोर रिएक्टिव है। नीचे वाले इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करते, इसलिए वो रिएक्शन में भाग नहीं लेते हैं, राइट। द नेक्स्ट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द कॉपर बाय द आयरन, राइट। अब यहाँ पे हम एक रिएक्शन देखेंगे दोस्तों। यहाँ पे क्या है, आयरन मेटल दैट इज योर Fe is dipped into the copper sulfate solution which is a blue color, राइट। अब यहाँ पे क्या होता है, आप मेरी रिएक्टिविटी सीरीज देखिए, राइट। कॉपर कहाँ पे, आयरन कहाँ पे प्रेजेंट है, यहाँ पे। कॉपर कहाँ पे प्रेजेंट है, यहाँ पे। सो कॉपर सल्फेट का जो साल्ट सोल्यूशन है, सो आयरन इज मोर रिएक्टिव, तो आयरन क्या करेगा, इस कॉपर को यहाँ से निकाल देगा, क्योंकि वो रिएक्टिविटी सीरीज में टॉप पोजीशन पे प्रेजेंट है। इसीलिए ये Fe क्या करेगा, इस कॉपर को यहाँ से निकालेगा। निकाल दिया, और यहाँ पे आपको मिल गया FeSO4। कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन ब्लू कलर है, और जब Fe के साथ रिएक्शन होगी तो आपको क्या आ गया, यहाँ पे FeSO4 एक्वियस स्टेट में आ गया, राइट। एक्वियस स्टेट में आ गया FeSO4 आयरन सल्फेट, और वो उसका कलर क्या है, ग्रीन कलर है। और कॉपर यहाँ पे मिल गया, वो मेरा रेडिश ब्राउन कलर में डिपॉजिटेड है ऑन द सरफेस ऑफ द आयरन। ये यहाँ पे मुझे मिल गया, मतलब Fe is a more reactive than copper, so copper easily means copper is displaced by Fe easily, blue color is changes to green color, ये यहाँ पे हम बोल सकते हैं। सेम यहाँ पे क्या करना है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ कॉपर बाय जिंक। अब यहाँ पे दोस्तों एक रिएक्शन ले लो, जिंक Zn, वो रिएक्टिविटी सीरीज में टॉप पे प्रेजेंट है, और कॉपर तो नीचे प्रेजेंट है, तो जिंक इजीली कॉपर को डिस्प्लेस करेगा, ये इसको इजीली डिस्प्लेस करेगा। कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन ब्लू है, राइट। तो जिंक ने अगर इस कॉपर को निकाल दिया तो तुमको यहाँ पे मिलेगा ZnSO4 एक्वियस सॉल्यूशन जिंक सल्फेट, और ZnSO4 का सॉल्यूशन कलरलेस है, राइट। एंड कॉपर वो तो ब्राउन कलर है, रेडिश ब्राउन कलर डिपॉजिटेड होगा ZnSO4 के साइड में, यहाँ पे ये एक है, मतलब जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, सो वी गेट ZnSO4 colorless solution, and copper which is a brown in color we get it, right. So zinc sulfate colorless solution, blue color of copper sulfate is going to faded, and a reddish brown deposit of the copper on the zinc strip, तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे हम थर्ड नंबर एक्सप्रेशन देखेंगे, लीड इज अ मोर रिएक्टिव देन कॉपर। अब लीड तो कॉपर से आगे प्रेजेंट है, राइट। यहाँ पे देखो लीड कहाँ पे प्रेजेंट है, लीड मेरा यहाँ पे है, कॉपर कहाँ प्रेजेंट, यहाँ पे। तो लीड इज मोर रिएक्टिव देन योर कॉपर, Pb इज मोर रिएक्टिव देन योर कॉपर, सो Pb इजीली डिस्प्लेस करेगा कॉपर से इन कॉपर क्लोराइड सॉल्यूशन। सो लीड इज प्रेजेंट एट above of the reactivity series, so lead can easily displace the copper from the copper chloride and we get the lead chloride। अब यहाँ पे देखो लीड है, लीड का सॉल्यूशन ब्लूइश ग्रे कलर है, कॉपर क्लोराइड का सॉल्यूशन ग्रीन कलर है। सो यहाँ पे ये मोर रिएक्टिव और ये लेस रिएक्टिव है। ये कॉपर मतलब ये लीड इस कॉपर को साइड में निकालेगा, तुमको मिलेगा PbCl2, ओके।
लीड क्लोराइड मिलेगा और कलरलेस सॉल्यूशन तुमको मिलेगा। बाद में बचा क्या है आपका, कॉपर है, और कॉपर क्या है, रेड ब्राउन कलर यहाँ पे डिपॉजिट हुआ है। मतलब दोस्तों ये कह सकते हैं हाइड्रोजन के ऊपर के जो एलिमेंट है वो मोर रिएक्टिव है क्योंकि वो इजीली इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। नीचे के हाइड्रोजन के नीचे के इलेक्ट्रॉन मतलब मेटल्स इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करते हैं, इसलिए वो लेस रिएक्टिव है। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा, राइट। तो यहाँ पे ये है, मतलब इन अ सिंपल वे वी कैन कंक्लूड दैट फ्रॉम द Fe2CuSO4 ये कॉपर सल्फेट का ब्लू कलर FeSO4 के साथ मतलब Fe के साथ रिएक्ट करोगे तो Fe ने इस कॉपर को निकाल दिया, मुझे FeSO4 मिल गया और ब्लू कलर का ग्रीन कलर मिल गया, और जो Fe का स्ट्रिप है उसके साइड में कॉपर रेडिश ब्राउन कलर डिपॉजिट हो गया। सेम यहाँ पे जिंक का है, कॉपर सल्फेट का ब्लू कलर है, Zn ऐड करने के बाद कॉपर को निकाल दिया, ZnSO4 हो गया, उसका सोल्यूशन कलरलेस हो गया, पर कॉपर का सोल्यूशन ब्राउन रेडिश ब्राउन रह गया। सेम यहाँ पे है, लीड ये मोर रिएक्टिव है कॉपर से, सो लीड ने क्या किया, कॉपर को निकाल के PbCl2 हो गया, लीड क्लोराइड कलरलेस सोल्यूशन है, कॉपर रेडिश ब्राउन कलर यहाँ पे हो गया, और ये मेरी रिएक्टिविटी सीरीज यहाँ पे है। जो टॉप है मोस्ट रिएक्टिव, लीस्ट है मतलब नीचे है वो लीस्ट रिएक्टिव हम इसको कह सकते हैं, राइट। नाउ देन नेक्स्ट इज योर एक्टिविटी 1.9 टू कैरी आउट द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बिटवीन द आयरन नेल एंड कॉपर सल्फेट। अब आयरन नेल हमको डीप करना है, कॉपर सल्फेट में क्या रिएक्शन होना है ये हमको देखना है, राइट। यहाँ पे मटेरियल रिक्वायर्ड मुझे कॉपर सल्फेट सोल्यूशन है, आयरन नेल है। प्रोसीजर में क्या है दोस्तों, यहाँ पे आपको एक टेस्ट ट्यूब लीजिएगा, उसमें कॉपर सल्फेट सोल्यूशन ले लीजिएगा, उसका जो कलर है वो ब्लू कलर है, और उसमें आयरन नेल डाल दीजिएगा। ये मेरा प्रोसीजर है, प्रोसीजर इतना समझ लीजिएगा आप। जैसे ही आप आयरन नेल को ऐड करोगे तो ऑब्जर्वेशन क्या होगा, जो ब्लू कलर है एक्वेस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट का, जब आयरन नेल उसमें ऐड करोगे तो वो ब्लू कलर फेड होके ग्रीनिश कलर में कन्वर्ट होने को स्टार्ट होगा। मतलब आयरन नेल जो है वो क्या हो जाएगा, FeSO4 में कन्वर्ट होगा, और रेडिश ब्राउन कलर इज डिपॉजिटेड ऑन द आयरन नेल ड्यू टू द कॉपर। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे दोस्तों, यहाँ पे मेरा क्या है, रेडिश ब्राउन कलर इस साइड में, ये जो साइड है आयरन नेल का साइड वहां पे डिपॉजिट हो गया है, वो कॉपर है मेरा, राइट। यहाँ पे क्या हो गया है, एक प्रकार की डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गई। यहाँ पे आप अगर देखोगे कॉपर सल्फेट के साइड में, तो इसमें जो कॉपर सल्फेट था CuSO4 और Fe, तो Fe ने इस कॉपर को निकाल दिया और ये बन गए FeSO4, राइट, और कॉपर बन गया, तो ये डिपोजिशन साइड में है वो कॉपर का डिपोजिशन है। इसका मतलब क्या हो गया, आयरन इज मोर रिएक्टिव देन योर कॉपर, सो कॉपर कैन डिस्प्लेस्ड बाय द आयरन फ्रॉम द कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, राइट। अब यहाँ पे जो ब्लू कलर था वो ब्लू कलर निकल के गया है और ग्रीनिश कलर में यहाँ पे चेंज होता हुआ हमको नजर आ रहा है, राइट। यहाँ पे रिएक्शन देखिए दोस्तों, आयरन है Fe, राइट, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन व्हिच इज अ ब्लू कलर। अब Fe ने इस कॉपर को निकाल दिया और यहाँ पे FeSO4 बन गया और कॉपर साइड में चला गया, ये रेडिश ब्राउन कलर यहाँ पे आ गया और ग्रीन कलर आयरन सल्फेट का यहाँ पे जमा हो गया, और इसमें जो कलर है वो ग्रीनिश कलर यहाँ पे डिपॉजिट हो गया दोस्तों इस कलर का, क्योंकि यहाँ पे FeSO4 सोल्यूशन बन गया है और जो साइड में है वो कॉपर यहाँ पे डिपॉजिटेड हो गया, ऐसा हम यहाँ पे कह सकते हैं, राइट। मतलब आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, सो कॉपर कैन डिस्प्लेस्ड easily by the iron from its salt solution and that is your displacement reaction, right। तो यहाँ पे एक मेरी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ऑलरेडी हम डिस्कस बहुत कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 56, iron nail, okay, iron nail is a placed in the beaker containing aqueous copper sulfate solution. When the iron nail is taken out after the 15 minutes, surface is coated with, कैसा है, यहाँ पे रेडिश ब्राउन और रेडिश ब्राउन डिपोजिशंस ऑफ द कॉपर है, तो आंसर ये है। यहाँ पे 2012 में 1 मार्क के लिए क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन नंबर 57, when iron nail are kept in a copper sulfate solution for 30 minutes, the solutions is changes to, राइट, पहले कैसा था कलर इसका, ब्लू था, बाद में कैसा हो गया, ग्रीनिश कलर हो गया, तो लाइट ग्रीनिश है, तो इसका आंसर डी है। रेड, पिंक और ऑरेंज ऐसा कोई कलर चेंज नहीं होता है CBSE 2012 में, 1 मार्क के लिए यहाँ पे क्वेश्चन आया है, राइट। द रिएक्शन बिटवीन आयरन नेल एंड कॉपर सल्फेट इज कॉल्ड एज एन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्योंकि आयरन मोर रिएक्टिव मेटल है
लेस रिएक्टिव कॉपर मेटल को डिस्प्लेस करेगा, इसीलिए वो यहाँ पे मेरी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गई है। सीबीएसई 2012 में 1 मार्क के लिए क्वेश्चन यहाँ पे आया है, राइट। क्वेश्चन नंबर 59, व्हेन आयरन रॉड इज केप्ट डीप इन द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन फॉर सम टाइम, ओके, बहुत बार देख चुके हैं। अ ब्राउन कोटिंग फॉर्म्ड ऑन द आयरन रॉड, वो कॉपर है हमारा। व्हाट इज द चेंज विल ऑब्जर्व इन द कलर सॉल्यूशन, स्टार्टिंग में कौन सा था, ब्लू कलर था, बाद में कौन सा कलर हो गया है, तो ग्रीनिश कलर हो गया है। राइट आल्सो केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व इन सीबीएसई बोर्ड फर्स्ट टर्म फर्स्ट 2015 में 1 मार्क के लिए क्वेश्चन आया। क्या है इसका आंसर, पहले ब्लू था, बाद में ग्रीनिश हो गया, तो Fe ने कॉपर सल्फेट से कॉपर निकाल दिया और FeSO पर कन्वर्ट हो गया। रिएक्शन तो आपके सामने आप ऑलरेडी देख चुके हैं, राइट। देन क्वेश्चन नंबर 60, what changes in the color of the iron nails and copper sulfate solution do you observe after keeping the iron nail deep in the copper sulfate solution for 30 minutes? सीबीएसई 2010 में 1 मार्क के लिए क्वेश्चन है, ऑलरेडी हम देख चुके हैं, राइट, तो उसका आंसर सभी का सेम है, ये इंपॉर्टेंट है। 3 मार्क के लिए क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 61, a zinc plate, okay, a zinc plate is placed in a copper sulfate solution in a glass container, okay, glass container में यहाँ पे रखे हैं। It was found that, अब इसका कलर कैसा, कॉपर सल्फेट का ब्लू है। It was found that blue color of solution get fader and fader with the passing time, correct है। A few days when the zinc plate was taken out of the solution, number of holes was observed on it, correct है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो गया है, ZnSO4 हो गया है और कॉपर रेडिश ब्राउन डिपॉजिटेड है। स्टेट द रीजन फॉर द चेंज ऑब्जर्व ऑन द जिंक प्लेट, क्योंकि यहाँ पे जिंक मोर रिएक्टिव डिस्प्लेस किया कॉपर को, ZnSO4 मिल गया और कॉपर रेडिश ब्राउन कलर में आ गया, और रिएक्शन हमने यहाँ पे लिखी है। 3 मार्क के लिए क्वेश्चन यहाँ पे हमको आ गया है, इस तरीके से आंसर लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 63, राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन ऑफ फॉलोइंग रिएक्शंस एंड आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ द रिएक्शंस एंड डिफाइन इट, मतलब मैंने कुछ रिएक्शन दिए, उसका टाइप आइडेंटिफाई करो, उसको डिफाइन करो। 1 मार्क के क्वेश्चन है। आयरन ऑक्साइड दैट इज योर Fe2O3 is treated with aluminium, right, aluminium, it gives the molten iron and aluminium oxide Al2O3. Here you will use 2 molecule of Al2O3 plus 2 Fe you will get it, right। तो ये क्या है, aluminium is more reactive, it will easily displace this Fe, so this is an one type of a displacement reaction, और ये रिएक्शन हो गया, फिनिश। राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन रिएक्शन बिटवीन द मैग्नीशियम एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। दोस्तों मैग्नीशियम एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अब मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 है, राइट, अब एक मैग्नीशियम 2 हाइड्रोजन को निकालता है, तो यहाँ पे मुझे मिल गया H2 गैस, प्लस क्या मिल गया, Mg की वैलेंसी 2 है, तो MgCl2 मुझे मिल गया। नेम द प्रोडक्ट ऑब्टेन एंड आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन, ये मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस ये मुझे मिल गया, और इस रिएक्शन का नेम है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सो ये क्वेश्चन आया था सीबीएसई 2012 में 2 मार्क के लिए, मतलब रिएक्शन लिखना और रिएक्शन का नेम आइडेंटिफाई करना, इसके लिए 2 मार्क यहाँ पे दिए हुए हैं, राइट। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो सब्सक्राइब कर लो दोस्तों, लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करो, और अपने अटेंशन यहाँ पे दिया है, राइट। सो थैंक यू फॉर योर काइंड अटेंशन, थैंक यू वेरी मच।